Welcome, dear all. Welcome, dear all. A very good evening, Bajwa. Good evening, Pinky. A very good evening, Bajwa. Good evening, Pinky. I would begin this session in the next 5 minutes. Just wait for the another participants to who would be participating us in this grand writing session. So till that, I just would like to tell you something about this clip. That in today's video we'll talk about the format of writing. As you know, some of the students score less in the writing, so even though the student who are well in good enough good in speaking, still they score less in writing tasks. So I would talk about all those sort of parameters that you need to follow in the writing session. Very good evening, Jasmeet. So till that, can you people tell me what are the problems that you face in the writing task too?
Now let's see, why do some people score less in writing? क्यों बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो IELTS राइटिंग में स्कोर कम उनका स्कोर रहता है? So what are the reasons behind this? So I'll be talking about all those sort of factors which lower down your score in IELTS writing. So now let's look at over here. To excel in the writing module, one has to be good at the sub skills. So, dear, you have to understand what are the sub skills. Sub skills किनको बोलते हैं, that I'll be discussing in this clip. So, writing about a paragraph and essay. As an instructor for the last 20 years, I observed that even those who well qualified test takers who speak fluently are not that good at writing. So I observed a lot of people in that, like, who are speaking good in English language, but still they are unable to score less in the writing module. So why this happen with them? So there are the number of factors and the things that happens with those students. So now let's look at this point that I'll be discussing during this clip over here. So let's see first the most common mistakes that a student does, right? तो बात करेंगे सबसे पहले उन mistakes के बारे में जो एक student करता है normally, like when they join the writing. So like very good evening, Amit. So let's look at the most common mistake that a student does, like while attempting IELTS exam. जो आप IELTS का एग्जाम जब हम करते हैं तो कौन सी मिस्टेक्स जो है वो हम कमिट करते हैं, so that really matters a lot, right? So student has to understand that perspective. तो वो हमें समझना पड़ेगा कि like why do we score less in that. So Mohammed, good evening dear. So what is the first mistake that a student commit? और ये सबसे पहला most common mistake है. Without proper thinking and preparation, they start writing impulsively. बिना कुछ सोचे उसका प्रेपरेशन की हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं. हम टॉपिक को पढ़ते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. हमने टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया है कि टॉपिक आपका मान लीजिए है व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टूरिज्म. अब टूरिज्म का सिर्फ वर्ड पढ़ता है बच्चा, टूरिज्म एडवांटेज डिसएडवांटेज. अब वहां पे टॉपिक पे देखने वाली बात ये होती है कि टूरिज्म के जो एडवांटेज हैं डिसएडवांटेज हैं वो उसने ग्लोबल पूछे हैं या डेवलपिंग कंट्रीज में पूछे हैं, डेवलप्ड कंट्रीज में पूछे हैं. सो द कैंडिडेट हैज टू नोट डाउन दैट. सेकंड, वो बोलता अगर पूछता है कि जो एडवांटेजेस हैं वो आउटवे करते हैं डिसएडवांटेजेस से, ये उसके एडवांटेज ज्यादा है डिसएडवांटेज कम है, या डिसएडवांटेज ज्यादा है एडवांटेज कम है. सो दैट द पॉइंट स्टूडेंट हैज टू अंडरस्टैंड. सो आंचल, good evening dear. So repeat the same words and phrases and the same structure. So what is the second mistake that a student does? वो same structure, same phrases और जो same words है statement के उनको वो use करते हैं. So that is the another reason of their score, right? That remains lower. Many are not meticulous with spelling. कुछ बच्चे जो है spellings के बारे में इतने ज्यादा aware नहीं होते because they assume that they know, right? कि उनको spellings का लगता है कि yes, yeah, they may be aware about it. So it's very important for them to focus over here. Good evening, Chinky. So the another is winner candidates right there, right? So one example is there, like the one candidate is writing THERE, right? And for THEIR, if the student is not aware कि जहां पे THEIR आना था वहां पे मैं THERE लिख रहा हूं, और जहां पे THEIR आना था वहां पे मैं THERE लिख रहा हूं, या इट्स आता है या इट आता है, इट्स आता है, तो how the examiner can give a good score to them. So these are the few basic things that a student has to keep in their mind. And the another fact that they need to keep in their mind, a lot of test takers use the same word of the question in their introduction instead of re-paraphrasing the question. हम बिना क्वेश्चन को पैराफ्रेज किए सेम वर्ड्स को यूज करके इंट्रोडक्शन लिखना स्टार्ट कर देते हैं, या सेम वर्ड्स को हम जो कि पैराग्राफ में लिखना यूज कर देते हैं. सो दैट इज द अनदर मिस्टेक दैट वी डू इन पैराग्राफ्स. द injured like many ideas which are not logically consistent. बहुत सारे स्टूडेंट है पैराग्राफ्स के अंदर आइडियाज वो डालते हैं, तो जिन आइडियाज का कोई कनेक्शन नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं होता, उनको कोई मतलब नहीं होता. सिर्फ मतलब ये नहीं कि आपने 250 वर्ड्स को पूरा करना है. मीन इज नॉट दैट कि आपने 250 वर्ड लिखने और स्कोर आ जाना है. नो, यू हैव टू राइट अ लॉजिकल स्टैंडर्ड.
अनदर इज दे राइट पैराग्राफ्स इन डिफरेंट लेंथ्स। ये सबसे महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई आइल्स की राइटिंग के स्कोर लोअर होने का रीजन। दे राइट पैराग्राफ्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, अलग अलग लेंथ्स के आप पैराग्राफ लिखते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके एक पैराग्राफ में 5 लाइंस हैं तो दूसरे में आपकी 7 लाइंस होती हैं। एंड दिस इज द फैक्ट, आप लोग रोजाना जो प्रैक्टिस करते हैं, आप अपने आइल्स की राइटिंग बुकलेट एक बार उठा के देखना, तो ये मिस्टेक आपको बड़ी कॉमन वहां पे मिलती है और आप अभी रेगुलरली में इसको कर भी रहे हैं। सो दैट द स्टूडेंट हैज टू अवॉइड, if they are willing to write the IELTS exam and if they are willing to get good band score, they have to maintain all these sort of levels. So it is better to have a uniformity in the size में क्या हो भाई, uniformity means जो size है वो सेम लेवल पे हो, राइट। अगर 5 आपने लाइंस लिखी हैं BP1 के लिए तो BP2 में भी आपके 5 लाइंस हो। So it is very important for you to maintain the uniformity between the paragraphs since many of them do not think logically। बहुत बच्चे जो हैं भाई, let's take an example, टॉपिक टूरिज्म के बारे में है तो टूरिज्म के बारे में अगर टॉपिक है वो उसका नेगेटिव बताते हैं कि वो ग्लोबलाइजेशन के ऊपर फर्क डालता है, तो ग्लोबलाइजेशन और टूरिज्म का कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन नहीं बनता। बट हाँ, एक जर्नल टर्म्स में अब बनाना चाहो तो वो कुछ हद तक कोरिलेट करता है। बट अगर बच्चा एक्सटेंड टॉपिक को ग्लोबलाइजेशन के ऊपर करता है तो वहां पे उसका नेगेटिव मार्क्स मिलते हैं। या टॉपिक बच्चा ग्लोबलाइजेशन की बजाय ग्लोबल वार्मिंग पे भी करता है, नो डाउट टूरिज्म जो सेक्टर है, इंडस्ट्री है, लोग ट्रेवल करते हैं, गार्बेज भी डिस्ट्रॉय करते हैं, बट इट डज नॉट मीन कि हम टॉपिक टूरिज्म के टॉपिक को एक्सपेंड कर दें एनवायरमेंट के टॉपिक में, तो वो क्या होगा कि एक स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं होता टॉपिक का। तो ये आपने नहीं करना, एक लॉजिकल तरीके से आपने उसको करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बच्चे का जो इंट्रोडक्शन है वो कुछ और होता है, कंक्लूजन उनका कुछ और होता है, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, काइंडली डू नॉट माइंड, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि उनका इंट्रोडक्शन में कुछ उन्होंने जो है लाइंस मेमोराइज कर रखी होती, कुछ इंट्रोडक्शन के लिए कुछ कंक्लूजन के लिए। जो लाइंस आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के लिए मेमोराइज करते हो तो इट डज नॉट मीन कि वो हर एक टॉपिक में फिट बैठे। दूसरा, लैंग्वेज जो स्टैंडर्ड है राइटिंग के आपका, दैट रिमेन्स क्वाइट डिफर, राइट। वो एक दूसरे राइटिंग के स्टैंडर्ड से काफी डिफर रहते हैं। सो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स टू फोकस ओवर दैट, राइट। तो आपके कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन दोनों का परफेक्ट बैलेंस होना मैंडेटरी है। Another common mistakes in the conclusion, the introduce they like new idea which is not acceptable, right। तो इंट्रोड्यूस जो कंक्लूजन है उसके अंदर क्या करते हैं भाई, दे इंट्रोड्यूस न्यू आइडिया, बच्चे नए आइडियाज को इंट्रोड्यूस करते हैं, नया आइडिया पुट ऑन करते हो आपकी राइटिंग के अंदर। सो दैट इज अ क्वाइट अ बैड थिंग, यू मस्ट नॉट डू दैट। Another is like it's easy to keep like eloquently whether the test takers has convincing the टॉपिक और नॉट, राइट। तो ये काफी ज्यादा जो है भाई आसान रहता है स्टूडेंट्स के लिए कि वो टॉपिक लिखना स्टार्ट कर देते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि क्या मेरा टॉपिक जो है वो कन्विंस कर रहा है टॉपिक को या नहीं कर रहा है। सो दैट्स व्हाई उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है टॉपिक का, दैट हैज टू बी मेंटेन्ड। अनदर, डू नॉट राइट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, बच्चे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं लिखते। तो अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपकी राइटिंग के अंदर नहीं है, सो अगेन दैट इज अगेन अ बैरियर for scoring more in writing task 2 as well as in the 1. So next point is there, to get good score, complex sentences are required both in essay and in the graph, right। तो ग्राफ और essay में दोनों में ही complex sentence के structure required है। Some do less than 250 word writing task 2 के लिए, 150 word writing task 1 के लिए। अगर आपकी लेंथ दोनों में कम रहती है तो सर्टनली यू विल बी पेनलाइज, राइट। पेनल्टी आपको उसकी देनी पड़ती है। डू इट नॉट मेंशन लाइक एनीवेयर इन द इंस्ट्रक्शंस टू माई माइंड, ऑल्दो इट इज नॉट रिटन एनीवेयर, हालांकि ये पॉइंट कहीं पे भी नहीं लिखा होता, इंस्ट्रक्शंस में भी लिखा नहीं है कि हैंडराइटिंग जो है वो मैटर करती है आइल्स के एग्जाम में। But in my terms, handwriting does matter a lot in IELTS exam. It creates a negative impression on the examiner if your handwriting is not legible. आपका handwriting अगर अच्छा नहीं है तो वो एक negative impression examiner पे जाता है। So therefore it is very important for the students to work over their handwriting.
those who are not having good handwriting, they must work over it. When introduction and conclusion convey different or contradictory view, how can a better score be expected? अगर मान लो आपका जो कंक्लूजन है और इंट्रोडक्शन है वो दोनों ही अलग अलग हैं, इंट्रोडक्शन में आप कुछ स्ट्रेट कर रहे हैं, कंक्लूजन में आप कुछ स्ट्रेट कर रहे हैं, सो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अ गुड बैंड स्कोर फ्रॉम द एग्जामिनर. सो देयर कंक्लूजन आर ऑफन नॉट कन्विंसिंग एंड समटाइम्स इवन इररिलेवेंट और कॉन्ट्रोडिक्टरी. बहुत बार क्या होता है भाई, जो बच्चा कंक्लूजन लिखता है, स्पेशली मैं कंक्लूजन पे एम्फेसाइज कर रहा हूं क्योंकि कंक्लूजन वो एंड होता है राइटिंग का और इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो उनकी इररिलेवेंसी काफी ज्यादा होती है इंट्रोडक्शन में, और जो राइटिंग टास्क 2 की जो समरी है दोनों में वास्ट डिफरेंस मिलता है, दोनों बिल्कुल अलग अलग स्टैंडर्ड से लिखे होते हैं, तो उसमें बेटर स्कोर नहीं आता. इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट कि वो इंट्रोडक्शन को ही पैराफ्रेज करके उसका समरी डिजाइन करें. ग्रामेटिकल एक्यूरेसी इज विटल इन राइटिंग, सो लाइक बट they put little efforts in reducing mistake. जो राइटिंग जो ग्रामेटिकल एक्यूरेसी है भी वो काफी वाइटल है राइटिंग के अंदर, बट बच्चे का काफी कम फोकस रहता है कि वो उसके ऊपर ज्यादा वर्कआउट करे इन द राइटिंग मॉड्यूल to reduce their mistakes. So now let's look at the organization of an essay, right? एक perfect essay का organization हम किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे हम उसको लिख सकते हैं, so that is very important. So you should learn different type of essays to organize an essay. आपको अलग अलग तरीके के जो है भाई essays के ऊपर वर्क करना पड़ेगा एक बेटर essay को डिजाइन करने के लिए. Let's take an example. First example here, A example है, what extent do you agree or disagree and how far do you agree or disagree? So to both A and B means to what extent do you agree or disagree में, or how far do you agree or disagree में. You can either agree or disagree, या तो आप एग्री हो या आप उसके साथ में डिसएग्री हो जाएं, और कैन हैव अ वाया मीडिया अप्रोच. कैन हैव अ वाया मीडिया अप्रोच, व्हाट डज इट मीन? अब दोनों के साथ में एक बैलेंस तरीके से भी जो है वो एग्री हो सकते हैं. दैट अगेन डिपेंड्स ऑन यू. सो योर स्टैंड इज व्हाट द एग्जामिनर लुक फॉर. आपका स्टैंड जो है वो एग्जामिनर को क्लियर होना चाहिए कि आप टॉपिक के साथ एग्री करते हैं या उसके साथ आप disagree करते हैं. So it is very important for you to maintain such a good level. So in answering these questions, right, you must express others view as well. जब आप आंसर करते हैं either A और B को, आपको दूसरे का व्यू भी स्टेट करना है, but you must refute their argument to make your argument stronger. जब आप दोनों ही व्यूज की बात कर रहे हैं, let's take an example. आप एग्री की फेवर में भी लिख रहे हो, आप डिसएग्री की फेवर में भी लिख रहे हो, बट टॉपिक के साथ में आप एग्री हो, बट स्टेट आप डिसएग्री के बारे में भी कर रहे हो, बट डिसएग्री पॉइंट को आपने क्या करना है, रिफ्यूट करना है. डिसएग्री पॉइंट को रिफ्यूट करना ना बोले, क्योंकि अगर आप डिसएग्री पॉइंट को रिफ्यूट करते हो तो आपकी जो आर्ग्यूमेंट है दैट रिमेन्स क्वाइट stronger, right? So that's why it's very important for you to just focus on that. So do you agree or disagree? It is not important that you evaluate others view. तो अभी जैसे अगर टॉपिक है, मान लो सिर्फ डू यू एग्री और डिसएग्री आपसे पूछा है, तो इसमें जरूरी नहीं है भी दूसरे के पॉइंट को इवेल्युएट आप करें या ना करें, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. However, to get a good score, it's better for you to discuss others view as well, right? तो आप दूसरे के व्यूज को भी जो है भी वो डिस्कस कर सकते हैं. दैट यू कैन डू इन दैट sort of things. So another is there the pattern of what extent and how far do you like is given below. So अब जैसे टॉपिक होता भी to what extent do you agree or disagree, or how far do you agree or disagree, right? So like for that it is given below. So now let's look at this point over here. Guys, just wait for a while. Some of the words are still at the down in the clips. So let me fix up this problem for, I will take only a minute to sort out this scenario. Just wait for a second. Otherwise
you would not be able to see me or to see the text in the complete series, right? So please stick with me for the couple of minutes. I'll be very thankful to you. So now let's see, is it okay with you? It will appear on your screen in couple of seconds. Just wait for a minute. So now let's look at over here. The pattern of what extent do you agree or how far do you agree or disagree is stated below. So what exactly you need to do? First, like introduction. In the introduction, and the another is like three sentences are required. So the first is two journal statements or the background information. आप पहले दो journal statement या background information लिखें जो भी आपका topic है, and then you need to provide what you are going to do in the essay. आप उसके साथ agree करने वाले हैं या disagree करने वाले हैं, you need to state that and your opinion. And thesis statement, I think so, like thesis statement, so that is required, right? Thesis statement is what means your opinion, okay? So that is required in the introduction. So once you have written the introduction, what is the second thing you need to do? फिर आपने क्या करना है उसके बाद में जो paragraph 2 लिखते हो means BP1, right? When you are writing BP1 and BP2, तो जब आप BP1 लिख रहे होते हो तो BP1 में 2 paragraphs आप बनाएं, sorry, in the paragraph number 2 BP1 में. So what you need to do, पहले आप टॉपिक सेंटेंस जिसके बारे में भी आपका टॉपिक होता है, सो दैट इज कॉल्ड टॉपिक सेंटेंस. सो आर्ग्यूमेंट 1, राइट? सो व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट 1? जो भी आर्ग्यूमेंट के बारे में आप बात कर रहे हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल. आप टूरिज्म के एडवांटेज बता रहे हो, तो एडवांटेज इज द आर्ग्यूमेंट 1. so you need to describe that advantage there. So make a point, illustrate and explain it. So what does it mean, the make a point, illustrate and explain it? So writing क्या कहता है? Writing ask you to write your topic. तो आप सबसे पहले क्या करें, राइटिंग में उसका टॉपिक सेंटेंस लिखें. So once you have written the topic sentence, so after writing the topic sentence, what you need to do, आप उसके बारे में फिर जो आर्ग्यूमेंट है एक पॉइंट आपने बनाना है. सो वंस यू मेड द पॉइंट, सो वंस यू हैव मेड ऑल द लाइक एनी पॉइंट इन दैट, सो आपने जो भी पॉइंट बनाया है उसको आप एग्जांपल करें, उसको इलिस्ट्रेट करें, देन फाइनली यू नीड टू एक्सप्लेन दैट एग्जांपल. फर्दर इज देयर इन पैराग्राफ 3 मींस इन BP2. BP2 में आपने क्या करना है, जो टॉपिक सेंटेंस है वहां पे आप अपनी आर्ग्यूमेंट नंबर 2 को एक्सप्लेन करोगे. सो वंस यू विल एक्सप्लेन योर आर्ग्यूमेंट नंबर 2, thereafter what you need to do, once you have explained the argument number 2, फिर भी आपने दोबारा से एक make a point, then you need to illustrate it and finally explain it, right? So आपने BP1 में सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस लिया, टॉपिक सेंटेंस लेके आपने पैराग्राफ्स को लिखना स्टार्ट किया. So once you have written the like about the topic sentence, फिर आपने एक पॉइंट बनाए, उसका एग्जाम्पल दें, फिर उसको सॉरी इलिस्ट्रेट कर दें, एग्जाम्पल दे दें, फिर उसके बाद में उसको एक्सप्लेन कर दे, राइट? सो दैट रिमेन्स अ की फीचर फॉर द राइटिंग टू स्कोर मोर बेटर. जो पैराग्राफ नंबर 3 है भाई, राइट? सो जिसमें आप अदर्स व्यू को स्टेट करते हो, यहाँ पे बात हो रही है किसके बारे में, द पैटर्न ऑफ टू व्हाट एक्सटेंड और हाउ फार डू यू एग्री और डिसएग्री. तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का जो थर्ड पर्सन है उसका ओपिनियन भी मींस अदर्स का ओपिनियन देना जरूरी है. सो लाइक अदर्स व्यू जब आप देते हो तो अदर्स व्यू के अंदर एग्जांपल रिक्वायर्ड नहीं होता. एंड डू नॉट फॉरगेट टू रिफ्यूट देयर आर्ग्यूमेंट. जब आप BP 3 लिखते हैं तो उसके अंदर आपने हाउ फार
डू यू एग्री और डिसएग्री, ऐसे के अंदर ये माइंड रखना है कि आपने जो भी उनकी आर्ग्यूमेंट है, मींस जो अदर्स का व्यू है, उस व्यू को आपने जरूर रिफ्यूट करना है। अनदर इज कंक्लूजन, जब आप लिखते हैं रीस्टेट एंड रीफ्रेज, आप अपने दोबारा से अपने रीस्टेट करना है इंट्रोडक्शन को, वर्ड्स को चेंज करना। योर थीसिस स्टेटमेंट, आप अपने पहले रीस्टेट करें स्टेटमेंट को, और जो भी आपका थीसिस स्टेटमेंट है उसको रीफ्रेज करके फिर उसका आपने समराइज करना है, व्हाट यू हैव स्टेटेड अबव, राइट। जो भी आपने लिखा है फिर आपने उसको स्टेट करना होता है राइटिंग के अंदर। फर्दर इज नाउ सम पीपल बिलीव दैट, अदर्स से दैट, डिस्कस बोथ द व्यूज एंड गिव योर व्यूज, राइट। तो इन एसेज को आप किस तरीके से लिखते हो? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, क्योंकि कैंडिडेट्स की प्रॉब्लम यही होती कि अदर्स को किस तरीके से बताना है, अपने व्यूज को कैसे बताना है, और डिस्कस का ऐसे है तो उस ऐसे को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। सो दैट रिमेन्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड। सो नाउ लेट्स लुक एट हियर, इट इज बेटर टू राइट अ न्यूट्रल इंट्रोडक्शन। जब भी आपका टॉपिक होता है भाई, तो सम पीपल से दैट, others say that, और discuss both the views and give your opinion, टॉपिक में लिखा होता है तो वहां पे आपके लिए बेटर क्या है, आप एक न्यूट्रल इंट्रोडक्शन लिखें। न्यूट्रल इंट्रोडक्शन इन द सेंस ऑफ कि वो इंट्रोडक्शन ना तो किसी को एग्री कर रही हो ना डिसएग्री कर रही हो, ना वो एडवांटेज ज्यादा बता रही हो किसी चीज के ना वो डिसएडवांटेज, मींस इट हैज टू बी इन द न्यूट्रल स्टैंडर्ड। न्यूट्रल स्टैंडर्ड में इंट्रोडक्शन कैसे होती है, दैट आई विल टेल यू इन द फर्दर क्लिप। सो हियर इट इज बेटर टू राइट अ न्यूट्रल इंट्रोडक्शन विदाउट मेंशनिंग योर व्यू। आपने अपना जो थीसिस है, आपका व्यू है, वो आपने वहां पे डेमोन्स्ट्रेट नहीं करना। यू मस्ट स्टेट अदर्स व्यू इन द बॉडी पैराग्राफ एंड योर व्यू इन द सेकेंड पैराग्राफ। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, जो अदर्स का व्यू है वो आपने बॉडी पैराग्राफ में बताना है, और जो आपका व्यू है वो आप सेकेंड बॉडी पैराग्राफ में बता सकते हो, but do not include your view in the first paragraph, right? So now let's look at the pattern of a discussion essay. अब एक डिस्कशन essay का पैटर्न क्या होता है, 4 पैराग्राफ आप लिखते हो, तो उसमें क्या भी 4 पैराग्राफ में 2 सेंटेंस, देन 4, देन 5 एंड 3 सेंटेंस, राइट। तो इस तरीके से आपने अपना बैलेंस रख के उसके अंदर चलना होता है। फर्दर इज द इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन मीन्स पैरा 1, एंड न्यूट्रल इंट्रोडक्शन इज बेटर विदाउट अ थीसिस, राइट। तो वहां पे एक न्यूट्रल स्टेटमेंट आप अपना दे सकते हैं बिना किसी थीसिस के। अदर्स व्यू को जो आप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर, इफ यू कैन स्टार्ट विद द अदर्स व्यू, इट्स बेस्ट टू ऑर्गेनाइज, राइट। तो ये आपके लिए भाई बेस्ट है, अगर आप दूसरे के व्यू से उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो, सो इट्स बेस्ट फॉर यू। नेक्स्ट इज इंश्योर यू रिफ्यूट अदर्स व्यू इन द सेम पैराग्राफ। जब आप दूसरे के पैराग्राफ के अंदर लिख रहे हैं BP2 में, जब आप पैराग्राफ नंबर 2 लिखते हैं, आपने सेकंड का ओपिनियन दिया, तो वहीं पर आपने क्या करना है, जो सेकंड ओपिनियन है, मींस आपका जो अपना ओपिनियन है और जो सेकंड पर्सन का ओपिनियन है, दोनों उसमें रिफ्यूट, आपने अपने पॉइंट को रिफ्यूट करना है, राइट। इंश्योर यू रिफ्यूट अदर्स व्यू इन द सेम पैराग्राफ, कि जो अदर्स लोगों का व्यू है, मान लो ग्लोबलाइजेशन के एडवांटेज के बारे में बात करें, जो दूसरे लोगों का ओपिनियन है ग्लोबलाइजेशन को लेके, मान लो वो फेवर नहीं करते, आप फेवर कर रहे हो, बट आपने उनके पॉइंट्स बताए हैं कि वो लोग उसको फेवर क्यों नहीं करते, बट एंड में आके आपने उनकी आर्ग्यूमेंट्स को रिफ्यूट करना है कि आप उसको क्यों फेवर कर रहे हो, राइट। सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट इज देयर, जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखने का, कोई एग्जाम्पल इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि आप चैलेंज कर रहे हो उनके व्यू को, राइट, जबकि आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। जब आप किसी व्यू को सपोर्ट करते हो, एग्जाम्पल तब देते हैं, अदरवाइज एग्जाम्पल इज नॉट रिक्वायर्ड इफ यू आर नॉट सपोर्टिंग द व्यू ऑफ अदर्स, राइट। जब हम दूसरों के व्यू को सपोर्ट नहीं करते तो उसको उसके अंदर जो है भाई हम एग्जाम्पल नहीं डालते। इफ यू आर सपोर्टिंग द अदर्स व्यू, राइट, सो देन यू कैन पुट एग्जाम्पल, फिर आप उसमें अपने बारे में जिक्र ना करें, राइट। अगर आर्ग्यूमेंट को रिफ्यूट कर रहे हो फिर आप एग्जाम्पल उसमें स्टेट ना करें, इट्स बेटर फॉर यू। सो योर व्यू, जो पैराग्राफ नंबर 3 है भाई, एन एग्जाम्पल मस्ट बी इंक्लूडेड टू सपोर्ट योर व्यू। जब आप अपने व्यू को स्टेट करते हो तो एग्जाम्पल इज सर्टेनली रिक्वायर्ड देयर टू स्टेट योर व्यू। एंड फाइनली इन द कंक्लूजन, जो पैरा 4 है,
state your standard clearly in a thesis sentence, right? जो एक thesis sentence है उसमें आप अपने स्टैंडर्ड को जो है वो क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट कर दें. नेक्स्ट इज देयर हाउ टू ऑर्गेनाइज एन एसे, राइट? आइल्स एसे, आइल्स के एसे को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं. सो द आइल्स टॉपिक शुड बी डेवलप्ड इन अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, क्योंकि भाई जो आइल्स का एग्जाम है, आइल्स का मतलब ही इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है. सो जो भी आप टॉपिक लिख रहे होते हैं तो उसको एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे आप उस टॉपिक को डेवलप करें, राइट? एक नेशनलाइज्ड लेवल पे टॉपिक नहीं होता, वो एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे सोच के आप टॉपिक लिखें. किसी स्टेट, कंट्री या किसी टेरिटरी को सोच के आप टॉपिक नहीं लिखोगे. सो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जैसे टॉपिक राइटिंग का लिखना स्टार्ट करते हैं तो उस टॉपिक को अपनी कंट्री के साथ में कोरिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं. सो डू नॉट कोरिलेट दैट टॉपिक टू योर नेशन. हाँ, अगर आप एग्जाम्पल आप कुछ देना चाहो तो एग्जाम्पल आप ऑब्वियसली स्टेट कर सकते हैं, बट टॉपिक को आप अपने नेशन तक सीमित ना रखें क्योंकि वो एक ग्लोबल टॉपिक है. सो द ग्लोबल टॉपिक रिक्वायर्स अ ग्लोबल स्टैंडर्ड, राइट? सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, उसका स्कोप ऑफ द एसे. स्कोप ऑफ द एसे को आपने देखना है कि एसे का एग्जैक्टली स्कोप क्या है. मींस एवरी आइल्स क्वेश्चन हैज स्कोप, अ बाउंड्री विच यू आर नॉट सपोज टू क्रॉस. हर एक आइल्स एसे का एक स्कोप है, एक बाउंड्री है जो आपने क्रॉस नहीं करना. अगर आपने आइल्स के राइटिंग में सक्सेस लेना है या पूरे आइल्स में अगर सक्सेस करना है, सो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप क्या करें, अपना एम्फेसाइज करें ओवर द स्किल्स, राइट? जो आपकी राइटिंग स्किल्स है उनके ऊपर एम्फेसाइज आपने करना है. और जो क्रॉस है, जो बाउंड्री लाइंस हैं, उनको आपने जो है एक्सीड नहीं करना. द स्कोप ऑफ द एसे विल बी क्लियर टू यू, राइट? वो काफी क्लियर रहता है स्कोप एसे का व्हेन यू डू नॉट डू द कीवर्ड एनालिसिस. तो यहाँ पे की डब्ल्यू ए फॉर्मेट को हम फॉलो करते हैं. की डब्ल्यू ए, व्हाट डज इट मीन? कीवर्ड एनालिसिस, राइट? सो व्हाट इज कीवर्ड एनालिसिस? लेट्स टेक एन एग्जांपल ओवर हियर. सो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में, should the internet be introduced to high schools students to improve the quality of their education? ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे अपने ध्यान से देखना है. या इट्स विजिबल इन योर स्क्रीन एज वेल properly. So you should the internet be introduced to high school students to improve their quality education, right? So यहाँ पे जो टॉपिक है, here the scope of the essay, अंडरस्टैंड करना है जो स्कोप है एसे का वो क्या है भाई? इंटरनेट है. क्या अभी स्कोप ऐसे का? इंटरनेट. और क्या है ऐसे? हाई स्कूल स्टूडेंट्स, राइट? यहां पे जो स्कोप है ऐसे का वो इंटरनेट है और हाई स्कूल स्टूडेंट्स है. ये दो स्कोप ऐसे के हैं. यू शुड नॉट रिलेट दिस टॉपिक टू प्राइमरी और टेरिटरी एजुकेशन. आप यूनिवर्सिटी एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन के साथ में इस टॉपिक को कोरिलेट ना करें. ये टॉपिक सिर्फ हाई स्कूल स्टैंडर्ड के बारे में है. सो एंड यू शुड नॉट जस्ट राइट अ जर्नल एसे ऑन द इंटरनेट एजुकेशन. दूसरा, अगर आप इंटरनेट के यूसेज ज्यादा बताने लग जाओ, एक जर्नल टॉपिक इंटरनेट के बारे में लिखना स्टार्ट कर दें, तो वहां पे आपके एक एसे का स्कोप खो चुका होता है. ब्रॉड आंसर इज नॉट एक्सपेक्टेड. आपसे ये नहीं पूछा गया कि आप इंटरनेट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स को एक्सप्लेन करें. नो, वहां पे दो ही पॉइंट आपसे पूछे कि क्या इंटरनेट जो है वो हाई स्कूल्स में इंट्रोड्यूस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. पॉइंट दो है, इंटरनेट प्लस हाई स्कूल, राइट? थर्ड पॉइंट आपने इंक्लूड नहीं करना. इफ यू वुड इंक्लूड more points or more ideas than these given two ideas, आप स्कोप के अलावा अगर थर्ड आइडिया कोई अपनी तरफ से प्राइमरी एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन, सॉरी यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में अगर आप लिखना स्टार्ट करोगे, ऑब्वियसली यू हैव टू लूज स्कोर, राइट? आपको अपना स्कोर जो है वो खोना पड़ता है. नेक्स्ट इज दूसरा स्टेटमेंट में समझते हैं. Does tourism bring benefits to the developing nations in the long run? क्या जो टूरिज्म है वो ज्यादा बेनिफिट देता है डेवलपिंग नेशंस को लॉन्ग रन में, राइट? सो क्या जो टूरिज्म के हैं वो एक ज्यादा बेनिफिट्स हैं भाई, राइट? सो हियर द स्कोप ऑफ द एसे इज लिमिटेड. यहां पे एक लिमिटेड स्कोप है एसे का. लिमिटेड स्कोप क्या है भाई? ध्यान से देखो. डज टूरिज्म ब्रिंग
बेनिफिट्स टू द डेवलपिंग नेशन इन द लॉन्ग रन, राइट। वहां पे वो डेवलपिंग नेशन के बारे में बात कर रहा है, राइट। इज नॉट टॉकिंग अबाउट डेवलप्ड नेशंस, राइट। स्कोप को अंडरस्टैंड करना है ऐसे का। ये नहीं आपने टूरिज्म के बारे में पढ़ा तो और आपने उसका लिखना स्टार्ट कर दिया, नो डियर, you will waste your time, right? So it's always important, and I would like rather advise you कि आप फोकस करके चलें, जो टॉपिक है स्कोप के ऊपर आप फोकस करें, दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। हियर द स्कोप ऑफ द एसे इज लिमिटेड। यहां पे एसे का लिमिटेड क्यों है भाई? पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द टूरिज्म ऑन द डेवलपिंग नेशन। अगर यहां पे आप नेगेटिव्स लिखना बैठ जाते हो इसके बारे में, राइट, टूरिज्म के बारे में, तो आपके ऐसे का स्कोप खत्म हो जाएगा। अगर आप इस टॉपिक को डेवलप्ड कंट्रीज के साथ में भी कंपेयर करते हो तो ऐसे इसका जो है स्कोप वो खत्म हो जाएगा। अगर आपने एग्जाम्पल भी देना है तो आप एग्जाम्पल भी डेवलपिंग कंट्री के बारे में दोगे, फर्स्ट वर्ल्ड नेशंस के बारे में नहीं दोगे, प्रोग्रेसिंग नेशन के बारे में आप एग्जाम्पल दोगे, क्योंकि टॉपिक पॉजिटिव इंपैक्ट पूछा उसने। does the top bring the positive benefits, or you can talk about benefits positive or like merits to the developing nation in the long run, तो आपने वो चीज एक्सप्लेन करनी है इसके अंदर। सो नेवर जस्ट राइट एन essay ऑन द एडवांटेज टूरिज्म। अगर आप टूरिज्म के एडवांटेज के बारे में एक ऐसे यहां पे लिख देते हो, you will definitely lose score, right? So that's why I would like to advise you people, kindly do not attempt such things because you would lose score in it. So that's quite important for you to work over here. Now let's look at easy steps to write an impressive essay, right? कौन से स्टेप्स हैं भाई जिनको अटेम्प्ट करके आप एक इंप्रेसिव ऐसे आप उसके अंदर लिख सकते हैं? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट thing. So what is the like an impressive essay? An impressive essay is what? Read the question thoroughly and underline the keywords to understand the question, right? आपने सबसे पहले क्या करना है भाई, क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन को थॉरोली उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। अंडरलाइन द कीवर्ड्स, राइट, कीवर्ड एनालिसिस, जो उसके मेन कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर फोकस करना है, राइट, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि शुड इंटरनेट बी इंट्रोड्यूस्ड इन हाई स्कूल्स, तो वहां पे कीवर्ड क्या है भाई, इंटरनेट है, दूसरा हाई स्कूल है। सेकंड में पढ़ा था कि क्या टूरिज्म लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देगा डेवलपिंग कंट्रीज को, तो वहां पे बेनिफिट्स हैं और डेवलपिंग कंट्रीज है टूरिज्म की, तो दैट इज कॉल्ड कीवर्ड एनालिसिस, राइट। तो स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि टॉपिक एग्जैक्टली डिमांड क्या है, राइट। ये नहीं कि टूरिज्म का टॉपिक है उठाया और टूरिज्म के बारे में आपने लिख दिया और काम खत्म, राइट। सो काइंडली डोंट अटेम्प्ट सच काइंड ऑफ थिंग्स, अदरवाइज गेट रेडी टू लूज स्कोर। नेक्स्ट इज देयर ऑन द बेसिस ऑफ की डब्ल्यू ई, राइट, जो भी वर्ड्स आप आइडेंटिफाई करते हो, कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करते हो, द फोकस ऑफ द क्वेश्चन इन अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। क्वेश्चन जो है भाई उसका एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव के ऊपर आप टॉपिक लिखें। ये नहीं मान लो अगर टॉपिक जो है डेवलपिंग कंट्री के बारे में आपने उठाया, इंडिया के बारे में लिख दिया, चाइना के बारे में लिख दिया, पाकिस्तान, बंगाल, भूटान, इनके बारे में आप टॉपिक लिखोगे, नहीं, आपने टॉपिक को जो है वही ग्लोबल एंगल से टॉपिक को डिजाइन करके लिखना है। समटाइम्स यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स टू गेट द फोकस। जब आपको अगर ये चीज नहीं समझ में आती तो आप उसके बीच की जो लाइंस हैं ऐसे को पूरा ध्यान से पढ़ें और जो उसके पॉइंट्स हैं उनको बड़े अच्छे गौर से अंडरस्टैंड करें, देन रीड बिटवीन द लाइंस टू गेट द फोकस, राइट। आपको ऑटोमेटिकली उसके फोकस के बारे में पता चल जाएगा। सो दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू। अनदर इज फोकस ऑन द स्कोप ऑफ द क्वेश्चन। माय डियर फ्रेंड, दोज हु आर विलिंग टू गेट 7+, जस्ट ट्रस्ट मी, आप सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर ध्यान रखें, यहां पे आपने कोई भी लूज पॉइंट नहीं छोड़ना, कि फोकस ऑन द स्कोप ऑफ द क्वेश्चन, राइट, कि स्कोप को अंडरस्टैंड करना है। डियर हु हैव जस्ट ज्वाइंड विद मी, हैव यू अंडरस्टूड द स्कोप ऑफ द क्वेश्चन? आप लोगों को समझ में आ गया कि क्वेश्चन का स्कोप क्या है? कैन यू टेल मी प्लीज, और डू आई नीड टू रिपीट इट वंस अगेन?
Please tell me, are you clear with the scope of the question? Thanks, Ike Mentors. So now let's look at focus of the scope of the question. So focus on the scope of the question. So what does it mean? Anil, what I'm saying, focus on the scope of the question. Focus on the scope of the question. What does it mean? मान लीजिए आपका टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन की एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में. बड़ा आसान से क्लियर करता हूं. ग्लोबलाइजेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में टॉपिक है और आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज बेखूबी तरीके से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट आपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताया है और कहीं ना कहीं टॉपिक में जाके एंड उसकी समरी में या इंट्रोडक्शन में आप ये पॉइंट स्टेट करते हो कि ग्लोबलाइजेशन के एडवांटेज ज्यादा हैं, डिसएडवांटेज कम है, या इसके डिसएडवांटेज ज्यादा है, एडवांटेज कम है. आपसे आउटवे पूछा ही नहीं था कि उसके एडवांटेज ज्यादा है या डिसएडवांटेज ज्यादा है. आपसे सिंपली पूछा था उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं. अगर आपने एडवांटेजेस ज्यादा बताए हैं, डिसएडवांटेजेस कम बताए हैं, तो वहां पे स्कोर डिडक्शन होता है. तो दैट इज कॉल्ड स्कोप ऑफ द क्वेश्चन. तो वो क्वेश्चन का स्कोप होता है, राइट. फॉर एग्जाम्पल, इज इट अबाउट सेकेंडरी और टेरिटरी स्टूडेंट, राइट. मान लीजिए कि भाई टॉपिक जो है वो सेकेंडरी के बारे में पूछा है, एजुकेशन के बारे में पूछा है, या यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में पूछा है. इज इट सॉरी इज इट अबाउट द ब्रेन ड्रेन ऑन द डेवलप्ड और इन द डेवलपिंग नेशन. क्या वो ब्रेन ड्रेन के बारे में बात करें, क्या वो डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में बात करें ब्रेन ड्रेन की, या डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में बात करें. सो दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट इज देयर, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड डिसाइड whether the introduction should have all this or it should be a neutral one. तो आपने यहां पे आइडेंटिफाई करना है भाई कि जो टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड डिसाइड whether the introduction should have all like all this or should it be neutral one. क्या इंट्रोडक्शन के अंदर वो सब आपने जो स्टेट किया क्या वो होना चाहिए था, या ये इंट्रोडक्शन एक न्यूट्रल होना चाहिए, वो आपको आपके टॉपिक पढ़ के उसके अकॉर्डिंग आपने डिसाइड करना है. फर्दर इज देयर, इंश्योर दैट योर इंट्रोडक्शन इंक्लूड्स अ स्टेटमेंट टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक. आपने इंश्योर करना है जो आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख रहे हो वो इंट्रोड्यूस करती हो आपके स्टेटमेंट के बारे में, उसका एक जर्नल स्टेटमेंट हो, व्यू ऑफ डिफरेंट पीपल ऑन द टॉपिक एंड योर ओपिनियन थीसिस इफ रिक्वायर्ड. दूसरे लोगों का ओपिनियन क्या है, आपका ओपिनियन क्या है. अगर आपने अपना ओपिनियन तब देना है अगर आपका ओपिनियन रिक्वायर्ड है, अदरवाइज डोंट गिव योर ओपिनियन. नेक्स्ट इज, ऑलवेज मेक श्योर यू राइट सेपरेट पैराग्राफ्स फॉर डिफरेंट आइडियाज. कि अलग अलग आइडियाज के लिए आप सेपरेट पैराग्राफ लिखें. वॉर्म वेलकम अनिल. डिसाइड ऑन द नंबर ऑफ पैराग्राफ्स 4 और 5. एवरी लाइक एवरी बॉडी पैराग्राफ जो है भाई should include a topic sentence, explanation and example. हर एक बॉडी पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस मींस जिसके बारे में टॉपिक है उसका पहला जो सेंटेंस है वो दैट इज कॉल्ड टॉपिक सेंटेंस, वो एक्सप्लेन किया हो. देन उसका प्रॉपर से एक्सप्लेनेशन दे रखा हो, एग्जाम्पल दे रखा हो, दैट एवरी बॉडी पैराग्राफ रिक्वायर. नेक्स्ट, स्टिक ऑन वन आइडिया, राइट. आपने एक आइडिया के ऊपर जो है स्टिक रहना है. हर एक बॉडी पैराग्राफ में एक आइडिया होता है और बहुत सारे बच्चे हैं भाई इंक्लूडिंग टू मेनी आइडियाज इन वन बॉडी पैराग्राफ इज ऑकवर्ड इन एकेडमी. कैसे जो स्टूडेंट बहुत सारे आइडियाज एक राइटिंग टास्क के अंदर लिख देते हैं, सो इट्स ऑलवेज क्वाइट ऑकवर्ड फॉर दोज राइट टू राइट मोर देन दोज आइडियाज. सो यूज
कनेक्टिव्स बिटवीन सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स फॉर कोहेरेंस एंड कोहेजन, राइट। कोहेरेंस और कोहेजन के लिए क्या भाई, अगर आप उसमें कनेक्टिव्स यूज करते हो अलग अलग सेंटेंसेस के बीच में, so that's gonna to be the wrong for you. So please be careful in using connectives between sentences and paragraphs, right? Next is there, use topic related vocabulary, right? आपने topic related vocabulary use करनी है, phrases use करना है, phrasal verbs and collocations, right? So whatever the topic you are having, so you need to state that related vocabulary, phrases and phrasal verbs and collocations, right? So let's take an example. Use topic related vocabulary. If the topic is about environment, use the vocabulary which is related to the environment. If the topic is about crime, use the vocabulary related to the crime. Means whatever the kind category of the topic, use that sort of words, right? जिस तरीके का टॉपिक है आप वैसे ही उसके अंदर vocabulary जो है वो यूज करें. नेक्स्ट इज देयर, अवॉइड रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स, राइट. जो वर्ड्स हैं उनकी आपने जो रिपीट करते हो वर्ड्स को, उनको आपने अवॉइड करना है. यूज सिनोनिम्स टू रीफ्रेज योर स्टेटमेंट. आप सिनोनिम्स को यूज करें स्टेटमेंट्स को जो है अवॉइड करने के लिए, कि आप उसके सेम वर्ड्स को ना यूज करें. रिड्यूस ग्रामेटिकल एरर्स एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स, राइट लिजिबली. आपने ग्रामेटिकल एरर्स को कम करना है, और जो स्पेलिंग्स हैं भाई जो भी आप लिख रहे हैं, दैट शुड बी क्वाइट क्लियर विद द स्टूडेंट्स फॉर द एग्जामिनर. सॉरी. बी कंट्रोल विद द पंक्चुएशन. यू शुड बी लिजिबल. हैंड राइटिंग डज मैटर. सो जो भी आप लिख रहे हैं वो उसके अंदर क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट हो, हैंड राइटिंग आपका प्रॉपर हो, और हैंड राइटिंग जो है वो एग्जामिनर इजिली उसको अंडरस्टैंड कर पाए. सो द हैंड राइटिंग मस्ट बी समथिंग लाइक दैट. Next point is be control with the punctuations, and that I have already explained you. So now know which word are hyphened. तो आपने ये देखना कि कौन से वर्ड hyphened है, कौन से वर्ड नॉन hyphened है. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो लिखना स्टार्ट करते हैं बट स्टिल अवेयर नहीं होते. hyphened और नॉन hyphened वर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि what are the words hyphened और and what are the words which are not hyphened, right? तो कौन से वर्ड हाइफन है, कौन से वर्ड हाइफन नहीं है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस एज वेल. तो हाइफन और नॉन हाइफन वर्ड्स के बारे में भी आपको पता होना जरूरी है. नेक्स्ट इज देयर, नेक्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड. सो लाइक जो आप IVU पर्सनल प्रोनाउंस का आप जो यूज करते हैं, यू ऑलवेज मस्ट ट्राई टू अवॉइड यूजिंग पर्सनल प्रोनाउन. हाउएवर अगर किसी केस में रिक्वायर्ड है स्टिल यू कैन यूज, बट ट्राई योर लेवल बेस्ट नॉट टू यूज दीज वर्ड्स, राइट. आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपने इन वर्ड्स को वहां पे यूज नहीं करना. गॉट इट. नेक्स्ट इज देयर, यूज कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस इफ यू आर इंटेंट टू गेट 7 बैंड स्कोर. अगर आप 7 बैंड स्कोर राइटिंग के अंदर करना चाहते हो, सो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस जो है वो दोनों ही उसके अंदर रिक्वायर्ड है. अनदर, इन कंक्लूजन समराइजेस द मेन आइडिया. आपने मेन आइडिया को समराइज करना है. एंड रीफ्रेज द क्वेश्चन, reassert your opinion, give the introduction, future prediction and or recommendation if required. So you need to focus on these areas to score more better in the writing task. So do not include new idea in your conclusion. So once you are writing the conclusion, so kindly do not add any new idea in that. Next is introduction and conclusion should not be contradict but be complementary, right? तो जो दोनों का इंट्रोडक्शन और जो कंक्लूजन है बैलेंस करके आपने स्टेट किया हो, बट उसके अंदर जो है भाई इंट्रोडक्शन और जो उसका कंक्लूजन है वो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होने चाहिए. मींस दोनों अलग अलग ना हो. बहुत सारे स्टूडेंट जो है इंट्रोडक्शन को अलग लिखते हैं और कंक्लूजन को अलग स्टेट कर देते हैं. सो काइंडली डोंट डू दैट. इवन इंश्योर दैट द वर्ड काउंट फॉर द एसे इज बिटवीन 250 एंड 270. 250 से 270 वर्ड आपने कम से कम लिखे हो, ये आपने इंश्योर करना है. अलो टाइम टू रीड योर एसे एट द एंड ऑफ करेक्ट मिस्टेक्स एंड पंक्चुएट वेल. तो आपने जो मिस्टेक्स हैं आपके पास में लास्ट में इतना समय बच जाए कि आप मिस्टेक्स को कम कर, जो है टाइम आपके पास में कम है
तो आप अपनी मिस्टेक्स को ज्यादा से ज्यादा पढ़ सको, और जो उनको पंक्चुएट आपने करना है, सही तरीके से पोजेस करना है, वो आप कर पाए। तो आपने अपना टाइम मैनेजमेंट उसके अंदर रखना है. That's quite important and necessary for all of you to maintain such a level. Next is there introduction and conclusion. Introduction and conclusion. A good introduction will introduce the topic sentence with the journal statement. आप टॉपिक को जो है एक जर्नल स्टेटमेंट के साथ में इंट्रोड्यूस करें. सेकंड पॉइंट क्या है भाई, स्टेट व्हाई द टॉपिक इज इंपॉर्टेंट. आपने ये डेमोन्स्ट्रेट करना है कि टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है. State that there are different views on this topic. You have to state, आपने ये भी स्टेट करना है किस टॉपिक के बारे में जो है भी डिफरेंट व्यूज भी हैं. फोर्थ, फोकस ऑन द टास्क बी अचीव्ड, कि हम किस तरीके से इस टास्क को अचीव कर सकते हैं, कैसे इसको बेटर तरीके से लिख सकते हैं. एंड स्टेट द राइटर्स ओपिनियन क्लियरली. राइट, you have to state the writer's opinion very clearly. Next is there, you must add a sentence on the outline of the essay. Right, जो ऐसे का आउटलाइन है उसमें आपने जो है भाई स्टेट करना है अपने ऐसे को. नेक्स्ट इज, फॉर एग्जांपल, द ऐसे इवेल्युएट द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल फैक्ट ऑफ क्लोनिंग. राइट, कि वो हर एक एंगल से जो है वो टॉपिक है, हर पार्ट को कवर करता हो. दैट हैज टू बी डन. नेक्स्ट इज देयर द बेस ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट. राइट, like the influence of globalization or like on individual culture and nation. right, तो दूसरा क्या भाई, आपने देखना है कि क्या ये एक जो ग्लोबलाइज लेवल पे कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कल्चरल लेवल पे कर रहे हैं या नेशन लेवल पे कर रहे हैं. राइट, सो दैट अ कैंडिडेट मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाइल राइटिंग IELTS एग्जाम. सो व्हाट अ गुड कंक्लूजन विल. राइट, कि एक सही कंक्लूजन क्या होता है भाई, कैसे किया जाना चाहिए. हाउ टू फॉर्म अ गुड कंक्लूजन, हाउ टू फॉर्म. आप एक अच्छे कंक्लूजन को किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं. सो रीस्टेट योर व्यूज, आपने अपने व्यूज को रीस्टेट करना है. समराइजेस द मेन आइडिया को आपने समराइज करना है. राइट योर थीसिस स्टेटमेंट इफ यू हैव नॉट रिटन इट एंड इन द सिचुएशन चेंजेस. सो अगर आपने अपनी स्टेटमेंट नहीं लिखी है तो आप अपना जो है व्यू थीसिस के अंदर भी डाल सकते हैं. थीसिस आई मीन टू से समरी के अंदर. इफ इट्स सुटेबल, प्रेडिक्ट विल हैपन इन द फ्यूचर. अगर टॉपिक में कुछ आपको लगता है कि फ्यूचर के बारे में भी कुछ इसके अंदर हो सकता है भाई, तो आप वो पॉइंट ऐड करें. और या कुछ सिचुएशन चेंज हो सकती है तो देन यू कैन ऐड दैट पॉइंट. नेक्स्ट इज देयर इन द कंक्लूजन नेवर ऐड अ न्यू आइडिया. आपने एक नया आइडिया जो है वो राइटिंग के अंदर एड अप नहीं करना है. एंड दीज आर द पॉइंट्स दैट वी कैन यूज फॉर journal explanation. So let's start by looking at the language in journal explanations for complex point. So you can write in order. In order का हम यूज कहाँ पे करते हैं भाई, किसी भी, it can be used to introduce an explanation for the purpose of an argument. जब आप एक purpose argument के explain करते हैं, so then you can use in order to. Further is in other words. So where we can use in other words when you want to express something in a different way. जब आप किसी अलग वे में एक सेम चीज को अलग तरीके से एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आप बोल सकते हो इन अदर वर्ड्स. नेक्स्ट इज देयर एग्जांपल्स आर देयर डियर, यू कैन रीड दैट. सो लाइक फॉर एन एग्जांपल, frogs are amphibians and like in other words they live in the land and in the water. Next is to put it in another way. So to put it in another way, so this phrase is the another way of saying in other words, or it can be used particularly complex point when you feel that alternative way of the word is problem and may help the reader to achieve a better understanding of its significance. So what does it mean? आपने मान लो कोई पॉइंट लिखा है, आप उस पॉइंट को एक बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हो कि जो रीडर है वो इसको एक बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए. सो देयर यू कैन स्टेट टू पुट इट इन अनदर वे. फॉर एन एग्जांपल, plants rely on photosynthesis. To put it in another way, they will die without the sun. Right, अब क्या भी plants rely on photosynthesis, कि photosynthesis के ऊपर जो है plant relay करते हैं. अब photosynthesis का काम क्या है भाई, so that like to put in another way, इसको दूसरे शब्दों में अगर कहें, they will die without the sun, ये बगैर सन के क्या है भाई वो die हो जाएंगे. So that is the purpose of to put in another way. नेक्स्ट इज दिस इज टू से. दिस इज टू से को हम कहां पे यूज करेंगे भाई,
This is to say can be used for further add details to your explanation. आपने कोई और more precise करके कोई point add करना है या आपने किसी detail को explain करना है, so you can write like this is to say example whales are mammals. This is to say they must breathe air. Another is there to the end. To the end is used for like this is used for the end actually. So for an example, geologists have long sought to understand how like animal communicate with each other. To that end, a new study has been launched like at the looks at the elephants and sounds and in their like possible meanings. So another is their additional information to support a point. So adding additional information to support your point, जैसे हम and को use करके further support करते हैं किसी point को, so that is the additional information. So these are the phrases for additional information. So what's more किसके लिए use किए जाते हैं भाई? जैसे हम लिखते हैं ना मोर ओवर, अगर मान लो आपने मोर ओवर और फर्दर मोर एक बार यूज कर लिया और आप दोबारा से यूज करना चाहते हैं तो वहां पे आप मोर ओवर और फर्दर मोर ना लिख के व्हाट्स मोर लिख के कंटिन्यू कर सकते हैं. एग्जांपल इज देयर, व्हाट्स मोर दैट इज नॉट ओनली द एविडेंस दैट सपोर्ट्स दिस hypothesis, right? Likewise is a kind of example, means it's something like agrees, you just mentioned about it, right? So like for an example, scholar A believes X likes scholar B argues, that's the compellingly in the favor of the point of view. Moreover का जो use है भाई वो what's more की तरह ही है, so that can be used as a point of that. So moreover the results of a recent piece of research provides compelling evidence to support of. Furthermore and moreover, like these are the what's more, furthermore and moreover are of सेम कैटेगरी. जहां पे आपने व्हाट्स मोर यूज किया है वहां पे उस पैराग्राफ में आप फर्दर मोर या मोर ओवर लगा लें. फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में जहां पे आपको मान लिया आपने व्हाट्स मोर यूज किया है, आप उसकी जगह पे दोबारा से अगर रिक्वायर है और किसी पॉइंट को ऐड करना है तो वहां पे आप मोर ओवर लगाएं. जहां पे आपने मोर ओवर लिख दिया फिर उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में आप फर्दर मोर का यूज कर लें. गुड इवनिंग. सो डियर ऑल, दैट्स ऑल अबाउट फॉर the IELTS writing. So thanks for watching. So from tomorrow's in next videos we will cover up the vocabulary for different topic, right? हम बात करेंगे vocab की अलग अलग टॉपिक के बारे में कि जैसे कि environment के लिए हम कौन सी vocab यूज कर सकते हैं, crime के लिए हम कौन सा vocab यूज कर सकते हैं, what vocabulary you can use for, let's take an example, ग्लोबलाइजेशन के लिए हम कौन सा वोकेबलरी यूज कर सकते हैं, ब्रेन ड्रेन के लिए हम कौन सा वोकेबलरी यूज कर सकते हैं. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दोज शॉर्ट ऑफ थिंग्स. एंड जो राइटिंग के कुछ शॉर्टकट सेंटेंसेस हैं भाई, आई विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दोज काइंड ऑफ शॉर्टकट सेंटेंसेस इन माय नेक्स्ट वीडियोस. थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय सेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम. गॉड ब्लेस यू एंड लुकिंग फॉरवर्ड you people with good band score. Thanks a lot.